Hello everyone and very good morning. I hope you all are doing well. Okay, so some problem happened, I guess. A second. Yes. Now it's fine, right? Everyone can see the screen? Chalo, if yes, then we will be today solving questions from properties of matter, basically fluid mechanics. So I have selected not so many questions, I would say. Very good morning, Dikshant. I have selected just 5 questions. Through those 5 questions, we will be learning the concepts. Basically, we will be revising the concepts. There is one very good question where we cannot directly use what is that called Bernoulli's equation. We need to do modifications. So those things we will be discussing. So less number of questions and more number of concepts we will be dealing with. Okay. And today maybe we will be leaving tomorrow early for the class. I would say. Uh, Reason being, I'm not feeling that well, so I will keep this session a bit more concise. So let's start with the very first question. This is your first question. सभी लोग टाइम लो, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो and then let me know what you think. ठीक है? Let's do some 5 question, not much. बेसिक पॉइंट्स को हाईलाइट करो, थ्री बडी डायग्राम सही से बनाओ. You will be getting the answer. This question is, simple question, I would say. Only you need to put in things carefully. If you do that, you will be getting the answer. There is no twist and turn, I would say. So simple. So we should go that way.
ठीक है। फॉर सॉल्विंग वेरी फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो ए ऑप्शन है तुम्हारा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। तो वी आर हैविंग अ टेनिस बॉल, ठीक है। सो ऐसे कुछ टेनिस बॉल ड्रॉ कर लो। इट हैज रेडियस, रेडियस वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन, मास इज ऑल्सो गिवन। इट इज स्लोली पुश डाउन, अगेन ये स्लोली वर्ड को एम्फसाइज करना है। वी आर स्लोली पुशिंग समथिंग डाउन, कहने का मतलब ये है कि वी आर नॉट लेटिंग इट एक्सेलरेट। डन है। स्लोली मीन्स वी आर नॉट लेटिंग इट एक्सेलरेट। डन है। एंड इसके कहने का क्या मतलब है, इनिशियली इट इज जस्ट केप एंड देन वी आर पुशिंग इट डाउन, मीन्स we are not changing its velocity. It is still in rest, but I mean its acceleration is zero, right? We are slowly letting it go down. So net acceleration of the ball is what? Zero. And in the case of net acceleration zero, what we will say, uh, ये कैसे पॉसिबल है, जैसे आप देखो व्हेन यू आर टेकिंग द बॉल डाउन द वाटर, ठीक है। सो लेट्स इमेजिन देयर इज वाटर इन इट्स सराउंडिंग, in the surrounding of this ball, and we are taking it down slowly. In this case, what will happen? What are the natural forces acting? First, let's focus on that. So let's say this is your mg, and then there will be force of buoyancy, so that is equal to since this ball is completely immersed inside water, है ना, ये तुम्हारा क्या है, completely immersed है। इसके वॉल्यूम को आप v मान लो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल जी, this is the force of buoyancy, right? This is volume of substance immersed into density of liquid into g. This is the force of buoyancy, right? And in this case, let's say this mg is greater than v rho lg. There will be difference of these two forces, ठीक है। So net force अगर मैं बोलूं mg minus v rho lg है, then because of this net natural force acting on the ball, this ball will have tendency to accelerate downward, ठीक है। लेकिन it is not accelerating downward, we are making it go slowly. So for that case we will be applying on it external force, external force, same amount of external force but in the opposite direction, ठीक है। So if external will look like this, if mg is greater than v rho lg, then ठीक है, एंड if external का वैल्यू क्या होगा, इसके बराबर होगा। Done it. And how much work this external force will do? So work done is force into displacement. So displacement direction is this. By 7 meter or 0.7 meter, you're letting it go down. You're helping it go down, right? So in the case external force is acting in the upward direction, work done will be negative, and that will be your F external into T. But let's see if mg is greater than V rho L G or not. Then only we can say कि net natural force is in which direction. Net natural force जिस किसी भी direction में होगा, उससे opposite direction में आप external force लगाओगे, and work done by external force will be equal to F external into T. ठीक है? So now let's calculate this thing. इसको हम कैसे calculate कर सकते हैं, बताओ? Volume of the ball is given or not? Volume of ball is there. It is I mean radius is given, so volume we already know. Mass is given, right? Mass is 22/7. So सबसे पहले चलो mg निकालते हैं। mg का वैल्यू क्या होगा, 22/7 into 10 to the power minus 3 into 10. So this is somewhat equal to 22/7 into 10 to the power minus 3 Newton. Sorry, minus 2 Newton. ठीक है। Now let's calculate the value of V rho L G. If we go on to calculate this, सबसे पहले आप वॉल्यूम लिख लो, 4/3 into pi, pi is 22/7, R क्यूब। R क्यूब क्या आएगा बताओ, यहाँ से R का वैल्यू आप पुट करो, दैट इज 27/8 into 10 to the power minus 6. So this is volume into density of liquid. Density of water is 10 to the power 3. So 10 to the power 3 into 10. So यहाँ से 10 to the power 4 मैं कर देती हूँ, ठीक है। If you solve it, what value you are going to get? So this will get cut by 2 times. This will get cut by 9 times. And this by 11 times. So this is basically equal to 99/7 into 10 to the power minus 2. This is the force of buoyancy, and gravitational force is how much? 22/7 into 10 to the power minus 2. So which is greater?
ग्रेटर इज डेफिनेटली वी रो एल जी, यानी कि नेचुरली नेट फोर्स इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, so external force acting will be in the downward direction, equal to how much? So if external आप लिख लो कितना होगा, v rho l g minus mg, and this is equal to how much, कितना आ रहा है बताओ? That is 99 by 7 I guess. Yes, and that is how much? Minus 22 by 7 into this is how much, into 10 to the power minus 2. So this is 77 by 7 into 10 to the power minus 2. This is force, external force acting. What will be the work done? So you clearly you can see external force is acting in the downward direction, and also it is moving in the downward direction, and it has moved by a distance of 0.7 meter. So work done is basically equal to force into displacement here. Cos theta will become 1 because theta is 0 degree. So force का value आप put कर दो 77 by 7 into 10 to the power minus 2 into 0.7 meter. So this will give you how much? Answer will be 0.077 joule. This is the work done we are getting, right? So first option क्या है? 0.077 joule. This is correct, right? So ये correct है. अब आप सेकेंड ऑप्शन पे जाओ. दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली जस्ट अबाउट राइटिंग एफबीडी एंड कंजर्विंग एनर्जी. So if you look at the B option, if we neglect the viscous force in water, so you have to neglect the viscous force in water. That is, energy is not getting dissipated, I would say. Then the speed V is equal to 7 meter per second. Okay, what is this speed V? Now let's read the question. We are taking it below, how much down? 0.7 meter below the water surface, and then released from rest. So we are taking it down. ठीक है, एक बॉल था, इसको हम कितना डाउन लेकर गए? Up to 0.7 meter. So it is here now, and from here it is released from the rest. ठीक है, it emerges from the water surface at a speed it emerges from the water surface at a speed v without getting wet and rise up to a height h. And it is rising up to the height h. Which of the following options are correct? ठीक है, so it is emerging from the water surface at a speed v. अब मुझे बताओ v का वैल्यू आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे बताओ? क्या मैम? विस्कस v का वैल्यू कैसे निकालोगे? विस्कस मैम फोर्स को वो नेग्लेक्ट करना है. हाँ, इस रख दिया था फोर आई मीन टू डिवाइड एच वी डिवाइड एच सॉरी, उसने फिर इंटीग्रेट करके हो गया था मैम 7 आ गया था। किसको इंटीग्रेट करेंगे बताओ? मैम यहाँ पे नेट, हाँ एफ एक्सटर्नल लिखा है ना वहाँ पे, तो उसको हम्म. मास इनटू एक्सेलरेशन लिख देंगे, और एक्सेलरेशन को वी डीवी बाई डी एक्स लिख करके इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन तुम जब उसको डाउन हाइट पे ले जा रहे हो ना, यहाँ पे लेकर आए और यहाँ के बाद तुमने उसको लीव कर दिया, यानी कि एफ एक्सटर्नल लग नहीं रहा. ठीक है, तो यहाँ पे डाउन गया, यू टुक इट, आई मीन यू टुक इट सम हाइट बिलो, एंड यहाँ पर ले जाने के बाद यू आर लिविंग इट. ठीक है, सो हम तो हम व्हाट इज. सही था मैम, अपडेट लिखेंगे वो विस्कस फोर्स ऊपर, नहीं विस्कस नहीं मतलब डेंसिटी फोर्स ऊपर और नीचे एमजी, और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, so can't we use energy conservation thing to make it more easier? Think around this, everybody. Let me know what answers you're getting. B you are getting or not. I mean, just मैम think a गेटिंग। bit around this. थोड़ा सा सोचो फिर मुझे बताओ. मैम एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे नेग्लेक्ट विस्कस फोर्स लिखा है। हम्म. हाँ तो उससे भी आ जाएगा। इक्वेशन लिख कर देखो क्या आ रहा है.
Do it, everybody. Because when you will do it, you will get the confidence. So do it. मुझे बी सी और डी ऑप्शंस बताओ अभी, एवरीबॉडी। ठीक है, जस्ट टेक 1.5 मिनट्स, फिगर इट आउट। यस। तुम ऐसा सोचो, जैसे सपोज कर लो, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या देखा, हमने ये देखा ना कि ऑन दिस बॉल this force was acting. This was the force of buoyancy. We already see it. And this was force of gravity. We have seen already that this force, that is upward force, is greater than the downward force. Done it naturally. So naturally, it was not going to go down. For that, we did work. ठीक है। और हमने जो वर्क किया ना, बेसिकली अगर हमने इसको नेचुरली छोड़ दिया होता तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता। बिकॉज नेट फोर्स तुम्हारा किधर लग रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट वी व्हाट वी डिड इज वी गिव इट एक्सटर्नल फोर्स, and that external force did some amount of work. How much work it did? This much. So basically, that work we are holding on onto the body. I mean, we are not letting it move. Why we are not letting it move? Kyuki uh, that is, if external, whatever force we are applying and whatever naturally force is acting, they both are getting added up to zero. ठीक है, वो दोनों ऐड हो जा रहे हैं जीरो पर। लेकिन एट द बॉटम एंड व्हाट यू आर डूइंग हियर, यहाँ पे तुमने एक्सटर्नल फोर्स को लीव कर दिया। ठीक है। सो द मोमेंट यू विल लीव द एक्सटर्नल फोर्स, क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स तुमने हटा दिया, नेचुरल फोर्स एक्ट करेगा, इतना ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है। एंड ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, how much will be its velocity at this point. So how much work you have done on it? You have done on it 0.077 joule of work. So basically that work will appear as kinetic energy. ठीक है। And I mean instantly that will appear, क्योंकि जब तुम उसको नीचे लेकर जा रहे थे, then what happened? There is no viscous force acting. So whatever work you did is basically there with the body. ठीक है, no viscosity has acted. So this amount of work 0.077 is with the body, and when you are releasing external force, this work will help it to go up, right? Naturally it will go up. So let's say here its velocity is v after leaving the external force. Then what you can say, half mv square should be equal to 0.077 joule of work. It should be equal to this much energy. I mean, this body is having energy because we have done work on it. And the moment external force को हटाओगे, उसके पास velocity आएगी, and that velocity will be basically
or that kinetic energy basically will be equal to how much? 0.077 joule, right? So यहाँ से अब आप वैल्यूज को पुट कर दो. हाफ मास कितना लिखोगे बताओ? मास है तुम्हारा 22/7. So here you write 22/7 into 10 to the power minus 3 into v का square, and this is equal to how much? 77 into 10 to the power minus 3. This will get cancelled. This is 11. This will get cancelled by 7. So V square is 49 and V is equal to 7 meter per second. So definitely it will start moving up with velocity of 7 meter per second. Okay. So option B, if we neglect the viscous force in water, then the speed is this. Yes, we can consider it like this. So B will be correct. Now, if we neglect the viscous force in water, again we are neglecting it, then height h. Now, what was h? Dekho, it emerges from the water surface at speed v without getting wet and rise up to height h. It is rising up to height h. So, if it is rising up to height h and there is no viscous force acting, so because of this velocity, it will go up, up, up. There is no viscous force, so we can conserve energy, right? If there is no viscous force, we can simply conserve energy. So at this point, it has energy of 0.077 joule at h height. Let's say it is able to go up to h height. Here, energy will become totally what? Potential energy. So आप simple लिख दो, half mv square will be equal to mgh if h is the maximum height. M will get cancelled. H equal to how much? V square by 2g. So v का square यानी कि 49 by 2 into 10. So if you solve it, you are going to get how much? 24.2.45, right? 2.45 meter. What is the option given? 1.4 meter. So this is not correct. This is wrong basically. Okay. Now D option, the ratio of magnitude of net force excluding the viscous force to the maximum viscous force in water is this. So what you have to calculate? Ratio of magnitude of net force. Viscous force को exclude करना है to the maximum viscous force acting. ठीक है? So magnitude of net force acting कितना होगा बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग हमने निकाला था, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, है ना? यहाँ पे ये बॉडी था, एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स इट इज सेइंग, राइट? सो विस्कस फोर्स को अगर आप एक्सक्लूड करोगे, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इट इज mg, इन द अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स ऑफ बुओयेंसी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, एंड यहाँ पे नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था और उसका वैल्यू क्या था अगर हमें पता हो, then this force was I guess 99/7 into 10 to the power minus 2. So here we will write 99 into by 7 into 10 to the power minus 2 Newton. And इसका रेशियो किसके साथ निकालना है? To the maximum viscous force in water. And if there is viscosity, if we are considering तो viscosity, yes, yes, वहाँ पे yes. 19 नेट फोर्स लिखने के लिए कहा है ना वहाँ पे, तो हम्म. माइनस एमजीएच में एमसी नहीं करेंगे। mg किया ना माइनस, यहाँ पे नेट फोर्स हमने लिखा है ना ये. अच्छा, तुम रो ये भी नेट, थी। ये नेट नहीं लिखा था क्या? तो नेट निकाल नहीं लो. नहीं, तो रो भी थी लिखा है। अच्छा अच्छा, तो आप नेट निकालो. नेट तुम्हारा कितना होगा? 77/7 into 10 to the power minus 2, राइट? तो ओके, मुझे लगा मैंने नेट लिखा है वहां पे, इसलिए मैंने लिख दिया. सॉरी. सो हियर यू राइट दिस, यानी कि 11 into 10 to the power minus 2. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम विस्कस फोर्स एक्टिंग. विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 6 eta rv, right? And maximum viscous force will act when velocity is maximum, and velocity, maximum velocity will be definitely here, that is 7 meter per second, because as it will go up its velocity is going to decrease. ठीक है? सो v का मैक्सिमम विस्कस फोर्स के लिए v का वैल्यू क्या लोगे आप? 7 लोगे, एंड 6 लिखो. ईटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दैट इज गिवन, आई मीन दैट इज 10 to the power minus 3. ठीक है? So 10 to the power minus 3, and radius is how much? Radius was 3/2 into 10 to the power minus 2. So right here,
3/2 into 10 to the power minus 2 into 7. So if we go on to do this, क्या आएगा बताओ? uh, what value we are going to get? Cut it. And this is 3 into 3, 9. 9 into 7, 63. है ना? 63 into 10 to the power minus 5. तुम लोग एक बार कैलकुलेशन सही से कर लेना, ठीक है? सो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम विस्कस फोर्स will be equal to how much? This is 11 into 10 to the power minus 2 and this is 63 into 10 to the power minus 5. कैलकुलेशन सही है क्या? एक बार रीचेक कर लो, क्योंकि आंसर आता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है. 500/9 and it is given correct. सो हमने कुछ मिस्टेक किया है कैलकुलेशन में. एनीबडी? चेक करो एक बार, मैं भी चेक करती हूँ इधर. एनीबडी लेट मी नो. के 6 पाई ईटा आर भी होता है ना. फॉर्मूला गलत लिखा है मैंने, किसी ने मार्क नहीं किया. देखो यहाँ पे पाई का टर्म मैंने मिक्स किया ना, मिस किया ना. विस्कस फोर्स क्या होता है? 6 पाई ईटा आर भी ना. सो यहाँ पे पाई का टर्म आएगा 22/7. सो पाई का टर्म लिखो. हाउ मच वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट? दिस विल बिकम 9. 22 into 9. So this is basically 22 into 9. Now you need to check. So this will get cut by 2 times. And if you do this, what value you are going to get? 10 to the power 3 by 9 into 2. So 500 by 9. Yes. So that way you will be getting the D as correct. So A, B, D are correct. Okay? Done it? So you simply needed to calculate everything. Energy conservation लगाओ, basic formulas use करना था. Nothing much. लेट्स डू दिस क्वेश्चन. यहाँ भी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर थिंग्स. बबल क्या होता है ये याद होना चाहिए. बबल के पास 2 लेयर्स होते हैं विच इज सॉर्ट ऑफ ओपन टू द एयर. इसलिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल को आप क्या लिखते हो? प्रेशर इनसाइड बबल को एटमोस्फेयर, दैट इज प्रेशर आउटसाइड, प्लस 4 into सरफेस टेंशन बाय रेडियस ऑफ द बबल. ऐसा लिखते हैं, ठीक है? सो बबल इज दिस. And read the question carefully. Try applying things. Whatever is given, जितना तुम्हें पता है, please try using things. This question is not difficult, I would say. And this is a recent question. So everybody do it. Try doing it. Read it carefully and do it. I will make you see options. पहले आप question पढ़ लो. All parameters को mark कर लो. After that, I will show you the options. ठीक है? So basically, बबल के अंदर जो गैस दिया हुआ है उसका स्पेसिफिक हीट गिवन है 5/3 है, ठीक है? एंड इनिशियली व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज Pa1, radius is R1, temperature is T1. In the second case, when atmospheric pressure is Pa2, radius is R2, temperature is T2. यही चीजें याद रखनी है, ठीक है? And this is a bubble. Now the options are, first case में surface of bubble is perfect heat insulator. So that is basically insulator. Insulator कहने का मतलब क्या है? Wall is adiabatic. ठीक है? So whatever thing is happening, I mean bubble क्या है?
एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है एंड सरफेस इज इंसुलेटर, इट मीन्स वॉट एवर थिंग विल हैपन इनसाइड द बबल वो एडियाबेटिकली ही होगा। ठीक है। सो एंड देर आर अदर टू ऑप्शंस जहां पे लिखा हुआ है बबल इज परफेक्ट हीट कंडक्टर। और जहां पे तुम्हारा बबल परफेक्ट हीट कंडक्टर होगा, अगर आप कंडक्टर की बात करो तो कंडक्टर क्या मेंटेन करता है ना? तुमने पढ़ा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर दो चीजें कंडक्टिंग वॉल से सेपरेटेड है, हियर इनसाइड इज द वाटर दैट, और यू से इट एयर, I mean, this is air bubble. So, and outside is your atmosphere. ठीक है। And if this wall is conducting, then whatever temperature will be inside will be outside. Conducting मतलब यही होता है ना? ठीक है। So, conducting means heat transfer होगा, तब तक होगा जब तक दोनों ही सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाए, कांस्टेंट ना हो जाए। सो एक प्रोसेस एडियाबेटिक जैसा दिख रहा है और दूसरा प्रोसेस क्या दिख रहा है तुम्हारा, आइसोथर्मल जैसा दिख रहा है। Maybe we can go around these two processes. Look at the options, try doing it. ठीक है। मैम ये तो ऐसे डी तो पक्का होगा मैम। नो नो डी। सॉरी। हाँ, नहीं नहीं, मुझे लगा कि मैम सी ऑप्शन में 4s आर की जगह 2 लिखा है। सी भी हो सकता है, चेक कर रहा हूँ। ओके, चेक नहीं, करो ए एक तो बार। नहीं होगा। थैंक्स भाई, आई वाज ओके। ओके। फर्स्ट ऑप्शन को सभी लोग चेक करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। आई मीन सरफेस ऑफ वहाँ बबल इज 2, परफेक्ट। यस। वो जो 2 लिखा है ना, वहाँ 4 आ रहा है मैम। 5 लिखा है ना, R1/R2 का पावर 5 लिखा है। हाँ 5 तो आ रहा है, लेकिन ऊपर फर्स्ट वाले ऑप्शन मतलब चेक कर रहा हूँ। ओके। वहाँ 2s नहीं, 4s/R2 आ रहा है, 4s/R1। तो गलत होगा फिर। हाँ तो मैंने सीधी चेक कर। सीबीएसई रिजल्ट आ गया, ओके। यार अब सीबीएसई रिजल्ट का ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रहा, कट ऑफ क्लियर कर लो काफी है ना? क्योंकि उसके बेसिस पे मार्क्स, एडमिशन तो मिल नहीं रहे ना। पहले कुछ कॉलेजेस में मिल जाते थे, अभी तो सारे कॉलेजेस, आई मीन इन दिल्ली देयर इज वन एग्जाम सीयूईटी है ना, यू नीड टू डू दैट। या दे, दैट इज फाइन। पहले एक्चुअली ट्वेल्थ के बोर्ड के रिजल्ट का काफी एक्साइटमेंट होता था। मुझे लगता है अभी भी होगा, बट सिग्निफिकेंस थोड़ा डाई डाउन कर गया। एनीवे, नंबर अच्छा आना अच्छा ही लगता है ना? करेक्ट। चलो लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन यार। सो व्हाट इज गिवन हियर?
देखो, सबसे पहले तो हमसे टू सिचुएशंस आर गिवन, राइट? इन वन सिचुएशन रेडियस ऑफ बबल इज व्हाट, R1, and in other situation radius of bubble is what, R2. ठीक है? So in first situation, if you write the pressure inside bubble, then pressure inside bubble, let's say in first situation I'm telling it P1, so this is equal to atmospheric pressure is how much, PA1 plus 4s by R1. ठीक है? इन सेकेंड सिचुएशन व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल, P2 is equal to PA2 plus 4s by R2. So this is P1 and P2. Now we have to relate these things. In the first case it is said that the process is adiabatic, right? Because this wall is acting as an insulator, so it will act as an adiabatic wall. Process is adiabatic, and in case of adiabatic process we know PV gamma is constant. ठीक है? So for the first case if you write, then P1 V1 gamma, and in the second case if you write P2 V2 gamma, these two are going to be equal, right? ये दोनों क्या होने वाले, इक्वल होने वाले. So अगर अगर आप P1 by P2 करते हो, तो P1 by P2 क्या हो जाएगा, P1 by P2 will be V2 by V1. So V2 by V1 आप लिखो, this is 4 by 3 pi R2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 by 3 पाई R1 का क्यूब, एंड इट्स पावर इज गामा टाइम्स, यानी कि 5 by 3. इफ यू लुक हियर केयरफुली, R2 by R1 का पावर 3 है, उसको बाहर लेकर जाओगे तो R2 by R1 का पावर क्या होने वाला है, 5. नाउ यू राइट P1 by P2, P1 is this much, P2 is this one, so this is going to be the ratio. लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत है, क्योंकि PA2 plus 2s by R2 दिया है. दिस इज नॉट ट्रू फॉर द बबल, दिस इज ट्रू फॉर ए ड्रॉप. ठीक है? दिस इज नॉट ट्रू फॉर ए बबल. सो यहाँ पे ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी को हम बाद में डिस्कस करते हैं, वो सिंपल एक थ्योरेटिकल चीज है. सी और डी को देखते हैं, पहले मैथमेटिक्स में डील करते. इफ द, और भी कोई इंसुलेटर है, हाँ डी ऑप्शन को चेक करते. इफ द सर्फेस ऑफ बबल इज परफेक्ट हीट इंसुलेटर, देन टेम्परेचर को प्रेशर से रिलेट करना है. अब देखो, टेम्परेचर को प्रेशर से हम कैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में रिलेट करते हैं, पीवी गामा हमें पता है कांस्टेंट होता है. प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करना है, वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन हर प्रोसेस में ट्रू होता है. तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, दिस कैन बी रिटन एज एनआरटी बाई पी, एंड दिस विल बी इक्वल टू के, एंड दिस इज गामा टाइम्स, राइट? So what value you are going to get? Here you will get P 1 minus gamma, T gamma is equal to constant, right? Now put these things. अब आप यहाँ पे पुट करो P P1 1 minus gamma, ठीक है? P1 1 minus gamma into T gamma will be equal to, T1 gamma लिखो, is equal to P2 1 minus gamma T2 गामा. ठीक है? हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है T2 by T1. तो चलो T2 by T1 निकालते. T2 by T1 अगर करोगे, गामा टाइम्स पावर जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, P1 by P2 का पावर हाउ मच, 1 minus gamma. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. सो इफ यू आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज, हमें क्या मिलेगा बताओ. T2 by T1, गामा का वैल्यू क्या है, 5 by 3, and this is equal to P1. P1 is how much? That will be equal to PA1 plus 4s by R1. ठीक है? And P2 is how much? PA2 plus 4s by R2. ठीक है? And this to the power 1 minus gamma. अगर आप 1 minus gamma करोगे, you will be getting how much? Minus 2 by 3. ठीक है? इसको प्लस में करने के लिए, पावर को प्लस में करने के लिए ऑपोजिट कर दो. सो ऊपर PA2 प्लस 4s by R2 आप लिख डालो, एंड डाउन में PA1 प्लस 4s by R1 यू डू, एंड हियर यू राइट 2 by 3. नाउ टेक दिस पावर दिस साइड. अगर इस पावर को आप दिस साइड लेकर जाते हो, तो T2 by T1 का पावर कितना हो जाएगा, 5 by 3 था, एंड फ्रॉम दिस साइड दिस पावर इज कमिंग, दिस विल बिकम 3 by 2 is equal to this pressure, right? So T2 by T1 का power how much, 5 by 2 is equal to PA2 plus 4s by R2 by PA1 plus 4s by R1. Let's check. So T2 by T1 power 5 by 2, and this is this. So this is correct. ठीक है? ये correct है. Now let's look at C option. If the surface of bubble is a perfect conductor,
and the change in atmospheric temperature is negligible. That is, process is what we will say isothermal. Process is what? Isothermal. Then R1 by R2 का क्यूब इज इक्वल टू दिस. सो हमें पता है इन केस ऑफ, मुझे किस किस चीजों को इंक्लूड यहाँ पे सो करना है. अगर आप ध्यान से देखो, R1 by R2 का क्यूब, इट हैज टू डू विद द वॉल्यूम. सो इन द केस ऑफ आइसोथर्मल, PV इक्वल टू nRT. T is a constant, PV is a constant, so P1 V1 is equal to P2 V2. So if you do V1 by V2, that is 4 by 3 pi R1 का cube divided by 4 by 3 pi R2 का cube. This is equal to P2 by P1. So that is PA2 plus 4s by R2 divided by PA1 plus 4s by R1. And if you do this thing, R1 by R2 का cube किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा. So this option is also what? Correct. This is also correct. ठीक है. So C and D are correct. It seems like. Now let's look at option B. If the surface of bubble is a perfect heat insulator कहने का मतलब energy transfer is not going to occur, then total internal energy of the bubble, including its surface energy, does not change with external atmospheric pressure. What do you think? Everybody, let me know what you think about this option. This B option. Yes, let me know. Surface energy कैसे लिखते हैं? सरफेस टेंशन इनटू एरिया. सरफेस टेंशन को हम सरफेस एनर्जी के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, बताओ. सरफेस टेंशन इनटू एरिया ना. दिस इज योर सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, राइट? व्हाट डू यू थिंक? इज इट दिस? यस, इट इज दिस. सो दिस इज बेसिक फॉर्मूला, राइट? सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं. सो इफ यू नाउ लुक एट थिंग्स कि चलो हीट एक्सचेंज तो नहीं हो रहा, अंदर से बाहर हीट नहीं जा रहा, but since pressure outside is changing, pressure inside is changing, and pressure inside is changing, this radius thing is changing, right? R1 and R2, they are changing, radius is changing, right? If radius is changing, surface I mean this area A is changing. Surface tension is a constant, that is property of liquid, right? So this tension is constant, A is variable, surface energy is changing, right? So option ये दिया है, the surface of bubble is a perfect heat insulator, total internal energy of bubble including surface energy does not change with the external atmospheric pressure. It will change. Even internal energy will change. How? Internal energy will get utilized for expansion or compression. ठीक है, क्योंकि in the adiabatic process, you know, you are not going to get heat from the outside. So if you have to if you have to expand, you have to use your own energy. So in that case, you are you are simply spending your internal energy. Okay. So this option doesn't seem correct. This is wrong. Okay. Options will be C and D. Yes. Now this is going to be a very good question, I would say. So this is something I wanted to discuss for fluid. I want everybody to read this question carefully so that I can discuss all the points. First, you read the question. Then I will show you what are things getting asked here. And then we will solve it. Okay. Chalo, everyone read the question first.
Let me show you the options. So I hope you all have made the diagram and everything. Some answers you can easily calculate, जैसे A, B, D, C में भी तुम जा सकते हो, बट लुक केयरफुली, यहाँ पे जो लिक्विड है और जो गैस है वो इनकॉम्प्रेसिबल है. सो वी कैन नॉट अप्लाई बर्नौलिस थ्योरम द वे वी नो इट. ठीक है, वो तो हम नहीं कर सकते. अदरवाइज यू लुक एट थिंग्स, आई मीन रीड द क्वेश्चन केयरफुली, हाईलाइट करो पॉइंट्स को. जैसे मैंने हाईलाइट किया, फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है ना. सो सॉरी, इट इज कॉम्प्रेसिबल नॉट इनकॉम्प्रेसिबल. क्योंकि हमने जो बर्नौलिस थ्योरम जो डिफाइन किया है ना, दैट वी हैव डिफाइंड फॉर नॉन विस्कस एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड. बट इफ इट इज कॉम्प्रेसिबल, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज. रो चेंज होगा, है ना. और सिमिलरली इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी विल सफर चेंज. ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप कैसे लिखते हो सिंपल लैंग्वेज में? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज व्हाट? दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. और हमने क्या लिखा है? हमने ये लिखा है कि मास एंटरिंग, कितना मास एंटर कर रहा है, मास एंटरिंग विल बी इक्वल टू मास एग्जिटिंग. ठीक है. वी टेक दैट कि चलो ठीक है, डेंसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है. देन वी से दैट, लेट्स से इन 1 second how much mass will enter. If velocity here is v1, then 1 second it is traversing length of v1, and volume will be a v1. So basically let's say here area of cross section is a1, volume is a1 v1, density is rho, so this is rho1. This is the mass entering. Mass entering will be equal to mass exiting. इसको हम क्या लिखने वाले हैं? a2 v2 rho. So rate of mass entering, this is rate basically. So rate of mass entering is equal to rate of mass exiting. This we say, right? When masses are not getting accumulated anywhere, which is the general case, right? But if and our equation of continuity looks like what? A1 v1 is equal to A2 v2. This is what we know. This is what we know. Why? Because we assume that liquid is incompressible. Rho 1 को rho 2 के बराबर कर देते हैं. But in this case, in this question, देखो इसलिए मैं कहती हूँ ना, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तुमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव किया होगा, एट दैट टाइम यू मस्ट हैव लर्न कि ऐसा कुछ लिखा होगा तुमने. एंड देन उसके बाद यू मस्ट हैव सीन कि whoever taught you must have said कि since liquid incompressible है, उस उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, rho 1 will be equal to rho 2, and hence a1 b1 equal to a2 b2. But in our case, what is happening here? Gas is entering and gradually gas is expanding. It is given in the question, right? uh, Gas undergoes adiabatic expansion. It is undergoing adiabatic expansion. So expansion thing is happening, यानी कि डेंसिटी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है. ठीक है. So here if you have to use the equation of continuity, you won't use it like a1 b1 equal to a2 b2. You will use it like a1 b1 rho 1 is equal to a2 v2 rho 2. This is what you are going to do. ठीक है. So V is the velocity. yes, V is the velocity in equation of continuity. Yes.
ठीक है. So let's read the question first. I would love to discuss it. So let's read it first. So there is an ideal gas of density this enters a chimney. So here its density is given 0.2. This is the value of rho here, rho 1. Enters a chimney of height h at the rate of this. So here dm by dt. dm by dt is given. So rate of mass entering is equal to how much? 0.8 unit में नहीं लिख रही. From its lower end and escapes through the upper end as shown in the figure. Cross sectional area A1. Here A1 is given and that is equal to 0.1. And here A2 is given, that is equal to how much? 0.4. Now what else are given? The pressure and temperature of gas at the lower end are 600, 300 Kelvin. So this is basically 600 Pascal and 300 Kelvin. And here it is how much? While its temperature at the upper end is 150 Kelvin. So here temperature is only given 150 Kelvin. The chimney is heat insulated, that is no heat transfer will occur and hence adiabatic, and gas undergoes adiabatic expansion. Take G is equal to this. Ratio of specific heats of gas, that is gamma, is given to ignore the atmospheric pressure. ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें बताओ. फर्स्ट ऑप्शन दिया है द प्रेशर ऑफ गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी इज दिस. सो दिस यू कैन इजिली कैलकुलेट हाउ बाय यूजिंग सिंपल एडियाबेटिक एक्सप्रेशन. सो हमें क्या निकालना है? प्रेशर. और प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में हम डील कर सकते हैं, है ना. सो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड एज हाउ पी वन माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट. सो P1 T1 ऐसे लिख डालो फर्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए. P2 1 माइनस गामा T2 गामा. P1 T1 and T2 are given, right? So P2 we are supposed to calculate. So P2 by P1 gamma minus 1, 1 minus gamma, that is minus 1. क्योंकि gamma given is 2 here. So P2 by P1 is how much? To the power minus 1. And this will be equal to T1 by T2. T1 is how much? 300 and this is 150. So let's write here 300 by 150 and इसका power क्या होगा? इसका power होगा gamma, that is 2. ठीक है. अब यहां से आप इसको कट करो. दिस इज 2. सो दिस विल बिकम 4 एंड P2 बाई P1 का पावर है माइनस 1. इसको आप एक काम कर लो, P1 बाई P2 लिख लो. सो P1 बाई P2 क्या है तुम्हारा? पावर 1 हो गया एंड दिस इज 4. सो P2 इज हाउ मच? दैट इज P1 बाई 4 एंड P1 इज हाउ मच? P1 इज 600, राइट. सो P2 मैंने सही लिखा है ना? कुछ गलत तो नहीं लिखा? गलत लिखा क्या? नहीं, सही लिखा है ना. P1 P2 तो पुट ही नहीं किया. P2 वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली. सो P1 600 बाई 4. अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा बताओ. दिस विल बिकम 150 पास्कल. सो प्रेशर एट द टॉप एंड विल बी 150 पास्कल. यहाँ पे क्या दिया है? 300 पास्कल. दिस विल बी रॉन्ग. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. Now let's look at option B. The velocity of gas at the lower end of chimney is this and at the upper end is this. Now how we will deal with the velocity? Velocity को हम कैसे निकालने वाले हैं? Use that equation of continuity with density modified. Use करो आप, you will get the answer. Try doing it. Rho 1 पता है but rho 2 नहीं पता हमें. V1 भी नहीं पता है. सो एक काम करो, एक इक्वेशन को ऐसे ना यूज करके, हमें यहाँ पे पता है ना डीएम बाई डी टी. दैट इज वी नो A1 V1 रो 1. वी नो दिस, राइट. एंड दिस इज इक्वल टू 0.8. A1 V1 रो 1 इज व्हाट? इट इज रेट ऑफ मास. सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट डीएम बाई डी टी. ठीक है. रेट ऑफ मास एंटरिंग, राइट. सो दिस वी ऑलरेडी नो. यहाँ से V1 निकाल सकते हैं. A1 का वैल्यू क्या है तुम्हारा? A1 is your 0.1, V1 we don't know. Rho 1 is how much? Rho 1 is your 0.2 and this is 0.8. So एक point तो cancel होगा. V1 is going to be 40 meter per second. So we now know V1. ठीक है. So if we know V1, now we need to calculate V2. Now we can use equation of continuity. A1 V1 rho 1 is equal to A2 V2 rho 2. But the question again is rho 2 is not known. Rho 2 is not known. How we can calculate rho 2 from this given information? कैसे निकाल सकते हैं बताओ. rho 2 को कैसे निकाल सकते हैं?
Just calculate it. I mean, maybe you can use what thing? You can use pressure volume thing also. Maybe that way we can do. Okay. So you can go that way if you see, if you are able to do it, then check क्या आएगा बताओ, थोड़ा सोचो। रो2 का वैल्यू हमें निकालना है। अगर रो2 हमें पता चल जाए तो वी2 इजिली निकल जाएगा। अब देखो रो2 हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मैं बोल रहा था कि बर्नौली यूज कर लोगे ना? बर्नॉलिस नहीं लगा सकते ना, लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल है। सॉरी कॉम्प्रेसिबल है। फ्लूइड इज कॉम्प्रेसिबल, यू कैन नॉट अप्लाई बर्नॉलिस। बर्नॉलिस हम तब लगाते हैं जब डेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होता है। जो बर्नॉलिस का जो तुमने एक्सप्रेशन पढ़ा है ना, P plus half rho V square plus GH. This you can only apply if density, this rho is constant, right? If it is not, you cannot. ये एक्सप्रेशन तब आया है when we have assumed liquid is incompressible and liquid is non-viscous. But here it is compressible. We cannot use it. Go by this way. I will tell you PV equal to nRT. You can write. ठीक है? P pressure into वॉल्यूम। एन को क्या लिख सकते हो, मास बाय मोलर मास, एंड दिस इज इक्वल टू आर टी। ठीक है। यहां से अगर आप ध्यान से देखो, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, कैपिटल एम को इधर लेकर आओ, पी एम इज इक्वल टू हाउ मच, एम बाई वी, दैट इज डेंसिटी, आर टी। ठीक है। सो वी कैन क्लियरली सी हियर रो इज इक्वल टू हाउ मच, पी एम बाई आर टी। रो इज पी एम बाई आर टी। एम वी डोंट नो, मोलर मास वी डोंट नो। लेकिन अगर हमने रो 1 के वैल्यू के लिए ये चीजें पुट कर दी ना, सपोज कर लो रो 1 तो हमें पता है ना 0.2। लेट्स कैलकुलेट 0.2 फ्रॉम दिस फॉर्मूला। सो यू कैन सी हियर, हियर प्रेशर इज 600 पास्कल, सो इन एसआई यूनिट वी डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। मोलर मास इज एम हियर, आर को आप आर लिखो। ठीक है। एंड टेम्परेचर हियर इज हाउ मच, 300। सो 300 से 2 चला जाएगा, एंड दिस टू टू विल गेट कैंसिल्ड। एम बाई आर का वैल्यू हमें मिल गया, एम बाई आर वैल्यू इज हाउ मच, 0.1। नाउ सिंपली कैलकुलेट रो 2। सो रो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P2। हियर प्रेशर P2 कितना आया था हमारा, 150 आया था, राइट? सो 150 इंटू एम बाई आर, दैट इज 0.1। सो 0.1 लिखो बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हियर इज 150 केल्विन, 150। सो रो 2 मुझे मिल गया ना 0.1। यू नीड टू डू समथिंग, राइट? यू नीड टू रन योर ब्रेन अराउंड की कौन सा फॉर्मूला यूज करें। कुछ तो और दिख नहीं रहा ना, वी कैन डू दिस थिंग। पीवी इक्वल टू एनआरटी से भी डेंसिटी निकलता है, सो वी कैन कैलकुलेट इट, 0.1। सो रो 2 का वैल्यू मिल गया हमें 0.1। अब आप सिंपल कॉन्जर्वेशन कर दो। So A2 V2 rho 2 is equal to A1 V1 rho 1, which is equal to 0.8, right? Put the value, A2 is 0.4, V2 we don't know, and rho 2 is 0.1, this is 0.8. So if you see here, V2 is 20 meter per second. ठीक है। So 40 and 20, yes. So option B is correct. Now the density of gas at the upper end is this? No. Just now we have calculated, it is 0.1, right? So option D is not correct. So इसको आप पहले ही mark कर दो. This is not correct. Now we need to check the option. Which option? Now we need to check the option C. अब देखो option C को भी calculate करने के लिए maybe you are thinking, sorry, I just got one call. I was just looking at that. Sorry. So the height of chimney is this. हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। उसमें भी तुम लोग सोच सकते हो कि चलो बर्नॉलिस लगा ले। बर्नॉलिस लगाने से हाइट मिल सकता है अगर हमने इस हाइट को 0 मान लिया तो। लेकिन बर्नॉलिस नहीं लगा सकते यार, बर्नॉलिस को हम यूज ही नहीं कर सकते।
क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और जो भी फ्लूइड है दैट इज कॉम्प्रेसिबल, वी कैन नॉट यूज इट। यही एक क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन में अगर तुमने बर्नौलिस लगाया ना, यू विल गेट 590 एंड देन यू विल टेक इट करेक्ट, बट दिस इज नॉट करेक्ट। तुम्हें ना इसको सॉल्व करने की जरूरत, आई मीन यू कैन डू दिस वे कि चलो बर्नौलिस लगा के देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर 590 आ रहा है मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग, और जो कि आ रहा था ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो आंसर कैसे लाएंगे? अगर तुम आंसर जानना चाहते हो तो देखो, मैंने इस लिक्विड के लिए दो मॉडिफिकेशन किए। एक तो मैंने तुम लोगों को ये बताया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को A1 V1 इक्वल टू A2 V2 से नहीं लिखना है, तो ये तुम नहीं लिखोगे। अब तुम कैसे लिखोगे? ऐसे लिख रहे हो, ठीक है। एंड दूसरा मैं ये बोल रही हूँ कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वेयर प्लस रो जी एच को हम यूज नहीं कर सकते। दिस वी कैन नॉट यूज बिकॉज लिक्विड इज कॉम्प्रेसिबल। व्हाट वी कैन डू, सो देर इज अ यूलर्स फॉर्मूला। ये एडवांस में पढ़ना है, एडवांस में नहीं पढ़ना, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ये डायरेक्टली, आई वुड से, बट यू कैन डिराइव इट फ्रॉम बर्नौलिस थ्योरम। ठीक है, अज्यूमिंग डेंसिटी इज इनकॉम्प्रेसिबल। ठीक है, हम कर सकते हैं। सो दैट थिंग आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ये हायर क्लासेस में है एक्चुअली। सो अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे हमारे पास जो कंटेनर था ना वो कुछ ऐसा था ना, समथिंग ऐसा था, राइट? ओके, डिजास्ट्रस, व्हाट लुक इट वाज लुकिंग लाइक। ओके, डन। मैंने कुछ ज्यादा ही बेकार बनाया। ऐसा है ना कुछ, इट इज लाइक दिस एंड हियर इट इज दिस। ठीक है, अगर अगर मैंने ये बोला कि लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्मॉल सेक्शन, this very small section such that this height dh, let's say this height is dh, this dh height is very small, very 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 small, and if this dh is very small, ठीक है, then we can assume that whatever density of gas was here will be density here। assume कर सकते हैं if this dh is very 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 small, then we can assume it। and if we can assume rho is very small for this small strip dh, ठीक है, then we can apply Bernoulli's theorem at point 1 and at point 2। ठीक है, so same thing I have done here। देखो मैंने क्या किया, अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। लेट्स से यहाँ पे तुम्हारा, लेट्स से यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है P, और यहाँ पे प्रेशर है P प्लस डीपी। डीपी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वॉट एवर इट इज, लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। लेट्स से हियर प्रेशर इज P एंड हियर P प्लस डीपी। लेट्स से हियर वेलोसिटी इज V एंड हियर वेलोसिटी इज V प्लस dV। ठीक है, एंड डेंसिटी वी आर अज्यूमिंग कांस्टेंट, सो वी डोंट नीड टू डील विद दैट। एंड एच को हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे एच को आप जीरो मान लो, तो यहाँ पे एच क्या हो गया, डी एच हो गया। ठीक है, सो लाइक दिस, if we now write Bernoulli's equation at point 1, we will write P plus half rho V square plus rho G, H क्या लिया है हमने, जीरो लिया है, equal to Bernoulli's equation at point 2। So you will be writing P plus dP into क्या करोगे, आई मीन हाफ रो वी प्लस डीवी का स्क्वायर प्लस रो जी डी एच। दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, है ना। अब आप इसको ब्रेक कर दो, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पी प्लस डीपी कर सकते हैं। और यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, हाफ पी, एक काम करो इसको सॉल्व कर लो, वी प्लस डीवी का स्क्वायर प्लस टू वी डीवी प्लस रो जी डी एच। इफ यू डू दिस और इसको फिर से ब्रेक करते हो, पी प्लस डीपी प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर, और डीवी, डीवी का स्क्वायर है, डीवी इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, इसका स्क्वायर और जीरो हो जाएगा, इसको आप जीरो कर दो। सो दिस इज जीरो, टू वी डीवी, सो दैट विल बिकम प्लस पी वी डीवी प्लस रो जी डी एच। एंड हियर पी प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। इसको आप ध्यान से अब देखो, ये जो इक्वेशन आ रहा है ना, क्या आ रहा है, पी वी, रो था ना कहीं, रो को ध्यान से लिखना, पी था या रो था, मैंने गलत लिखा क्या, हाफ, दिस वाज रो राइट, सो दिस इज रो, बेसिकली रो वी डीवी, राइट। सो दिस इज रो वी एंड डीवी
प्लस रो जी डी एच प्लस डीपी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो, रो को कॉमन ले लो, सो दिस विल बिकम डीपी बाई रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी एच। दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज योर यूलर्स इक्वेशन। इसी को हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं यूलर्स इक्वेशन। ये भी तुम्हारा आ रहा है बट नॉलेज से ही। दिस इज कॉल्ड यूलर्स इक्वेशन एंड इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करना था बेसिकली। ठीक है, और इस इक्वेशन को भी तुम डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। इस इक्वेशन को भी यूज करने के लिए यू नीड टू सी, जनरली इट इज यूज विद गैसेस, यू नीड टू सी प्रोसेस इज एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एंड व्हाट, डिपेंडिंग ऑन दैट डीपी बाय रो विल वेरी। ठीक है, सो एक्चुअली क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स था आई वुड से। सो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, देखो सारे को इंटीग्रेट किया। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू रीच एट नाउ अनदर इक्वेशन। सो वी डीवी को अगर इंटीग्रेट करोगे वी स्क्वायर बाई टू, जी डी एच को करोगे जी एच, एंड इसको अगर इंटीग्रेट करोगे ना, अज्यूमिंग प्रोसेस इज एडियाबेटिक, यू विल गेट दिस। कैसे आ रहा है ये, जैसे देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस हम क्या जानते हैं, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, हम जानते हैं ना ऐसा। और वी को क्या लिख सकते हैं, वी को लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होता है डेंसिटी। वी को डेंसिटी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, एम बाई रो। सो यहाँ से पी एम बाई रो एंड दिस इज कांस्टेंट, दिस इज पावर गामा एंड दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, पी बाई रो, पी बाई रो गामा, पी बाई रो गामा, एम इज अ कांस्टेंट बेसिकली फॉर दैट डी एच स्ट्रिप। सो यहाँ से ऐसे भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट हियर ऑल्सो। सो यहाँ पे एक अनदर कांस्टेंट के मिल रहा है हमें। ठीक है, सो बेसिकली इसको अब आप इंटीग्रेट, आई मीन अगेन यू डू द स्लाइड डिफरेंशिएशन, बहुत ही लेंदी है आई वुड से, बट अगेन आई विल डू। ये तुम्हारा क्या है, इसका तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन करो। सो कैसे करोगे, रो गामा डीपी माइनस पी एंड दिस विल बिकम हाउ मच, इसका डिफरेंशिएशन करो यार, दिस विल बिकम नाम गामा, कहाँ भी आएगा? हाँ गामा, -1। गामा माइनस वन डी रो समथिंग, राइट, डी रो आएगा ना कुछ। यस मैम, 0 होना चाहिए। ओके, अपॉन अपॉन में समथिंग वी विल गेट पी गामा, वॉट एवर यू चेक विथ इट। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ से तुम्हें डीपी का वैल्यू लिखना था, डीपी का वैल्यू यू नीड टू राइट। सो यहाँ से अगर मैं डीपी के वैल्यू को लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मैम एक्चुअली नीचे स्क्वायर होना चाहिए था। हाँ ये वाला तो पावर इधर चला जाएगा। देखो यहीं से तुम्हें चीजें लिखना है बेसिकली, रो गामा है, डीपी है, ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको तो इधर कर दो, जीरो कर दो, और ये तुम्हारा क्या था, रो गामा, और रो का पावर गामा माइनस वन अगेन, रो का पावर गामा माइनस वन, और डी रो है ना, कहीं तो डीपी भी होगा, ये डीपी है शायद, और ये है तुम्हारा डी रो। सो नहीं, नॉट दिस वे वी कैन डू, लेट मी थिंक, ऐसे करेंगे तो डी रो तो जीरो हो जाएगा ना, डेंसिटी को कांस्टेंट माना है हमने, लेट्स नॉट गो दिस वे। व्हाट एल्स, अच्छा एक काम करते हैं ना, डायरेक्टली पुट करते हैं यार। सो यहाँ से हमारे यहाँ पे क्या है, देखो डीपी बाई रो है ना, सो एक काम करो, प्रेशर के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, रो तुम्हारा डिफरेंट टर्म है। सो प्रेशर को क्या लिख, डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, रो गामा क्या हो जाएगा तुम्हारा, रो गामा हो जाएगा, P/K इट इज। लेकिन रो गामा करेंगे के का पावर गामा चला जाएगा, वी नीड टू डू गो मोर वाइजली। एक काम करो, और वो काम ये हो सकता है कि इस पूरे पे ना पावर डाल दो वन बाई गामा का। अगर वन बाई गामा का पावर डालते हैं दोनों साइड, ये कांस्टेंट हो गया, तो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा पी का पावर वन बाई गामा एंड दिस इज रो, एंड दिस इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट, राइट। सो रो का वैल्यू यहाँ से आप लिख डालना, रो का वैल्यू क्या लिखोगे, सम कांस्टेंट के डबल डैश बाई पी वन बाई गामा। ठीक है, और इस वैल्यू को तुम्हें यहाँ पे पुट करना है, डीपी बाई के डबल डैश, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा पी गामा एंड पी वन बाई गामा, सॉरी, पी वन बाई गामा
एंड देन देयर इज कांस्टेंट दिस। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, यू विल गेट समथिंग। I mean, you really need to do a lot, but if you will differentiate it, finally you will be getting this one. Okay, and I have, sorry, integrating. I have integrated all v square by 2 gh. So this is the constant equation we are getting. देखो, यूलर्स इक्वेशन तक पहुंच गए हम। यूलर्स इक्वेशन पे पहुंचने के बाद यू हैव टू सी प्रोसेस कैसा है। एडियाबेटिक है। फॉर एडियाबेटिक दिस विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा दिखने वाला है। फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल के लिए यू नो पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल करना ज्यादा आसान है क्योंकि पीवी इक्वल टू एम बाई वी लिखोगे यहाँ पे, दैट विल, सॉरी, एम बाई एम लिखोगे आर टी। कैपिटल एम को इधर लेकर जाना, एम बाई वी विल बिकम रो। रो आर टी इज अ कांस्टेंट, राइट। सो रो को आप क्या लिख सकते थे? रो को आप लिख सकते थे पी एम बाई आर टी। सो यहाँ से एम बाई आर टी कॉन्स्टेंट है, रो को क्या लिखोगे? पी एम बाई आर टी, प्रेशर का टर्म आ जाता, डीपी बाई पी, सो एल एन पी समथिंग आता। ठीक है, सो इस केस में ऐसे करना है, एडियाबेटिक में पीवी गामा से प्रोसीड करना है। ठीक है, यू विल मैम गेट एक दिस चीज, केस। यस, लेट मी नो। हम तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, आगे जो कांस्टेंट बचेगा वो कहाँ गायब हो जा रहे हैं, मतलब जो आपने कांस्टेंट गायब नहीं होगा। टेम्परेचर। अगेन तुम्हें कांस्टेंट का वैल्यू रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि अगेन तुम्हें अच्छा, कांस्टेंट के वैल्यू को रखना पड़ेगा, जैसे कोई भी एक टाइम पे कांस्टेंट का, यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? पीवी गामा है ना। सो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू क्या आएगा? रो बाई पी, वन बाई गामा। सो सिंपली इसी वैल्यू को पुट कर देना होगा वापस, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने के बाद। समझ रहे हो? यस मैम। यस। सो व्हेन यू विल डू दैट यू विल गेट दिस थिंग। अब ये इक्वेशन को आप यूज कर लो दोनों ही पॉइंट पे, पॉइंट वन और पॉइंट टू। पॉइंट वन तुम्हारा कहाँ था? पॉइंट वन वॉज हियर, यहाँ पे, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। फाइनल इक्वेशन जो हमें आया है ना, आप उसको यूज करो। देखो मैं यूज करके दिखाती हूँ तुम्हें आंसर क्या आता है। सो इनिशियल पॉइंट पे अगर मैं ये वैल्यूज लिखूं तो क्या लिखूंगी? इनिशियली पी था 600, है ना। डेंसिटी था तुम्हारा 0.2। गामा जीरो इज 2। पॉइंट टू हाँ, गामा इज 2, 2/1, एंड दिस इज वी स्क्वायर, दैट इज 1600 था, राइट। 40 था, सो 1600/2। एंड एच को हमने जीरो मान लिया उस लेवल पे, सो ये तो जीरो हो गया। सेकेंड टर्म में जाओ, प्रेशर वाज 150, रो वाज 0.1, ये तो हर जगह सेम होगा। एंड प्लस वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना था? 20 था आई गेस। 2400 बाई व्हाट यू विल डू, 2 प्लस जी एच। जी इज हाउ मच? जी इज योर 10 इंटू एच। यहाँ से आप एच को निकाल सकते हो। अब आप देख लेना कितना आएगा। टू टू विल गेट कैंसिल्ड, वन मोर जीरो। सो दिस इज 3000 एंड दिस इज 800 and this is how much? One zero will go up. So this is sorry, this was 6,000 actually. So here it is 3,000 plus this is 200 plus 10h, 360 समथिंग आ रहा है गेस। कितना आएगा बताओ? ये यहाँ से 3,000 चला जाएगा, दैट इज 3,800, एंड 200 दैट इज 400 समथिंग आ रहा है। 400, 400 समथिंग आ रहा है। मे बी कैलकुलेशन देख लो एक बार, चेक कर लेना प्लीज। पुट द वैल्यूज करेक्टली, यू विल गेट द आंसर। सो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली तुम्हारा डिफिकल्ट था, मैं कहूंगी ऐसे जाने से बेनिफिट नहीं था। तुम्हें मैम। पता है, एक ट्राई, हाँ बोलो। मैं यूलर फॉर्मूला जो लिखा ना वो सब करे या मैं रहने छोड़ दूं, नहीं, ये क्योंकि फॉर्मूला मतलब लगाना, जो दिस फॉर्मूला है इज करेक्ट। फाइनल, फाइनल रिजल्ट याद कर लिया, मतलब एडियाबेटिक का जो ये लगा कर डब्बे में लिखा ये। हाँ, अगर और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। अगर वो क्वेश्चन में ऐसा आ गया तो मैम आइसोथर्मल लगेगा। हाँ, तो अगर आइसोथर्मल आया तो देखो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इफ यू वांट मी टू डू। तो हम डीपी डायरेक्ट बाई रो फॉर्मूला, पे, रो को ही चेक करना। फॉर्मूला मैंने निकाला नहीं है, मैं भी निकाल देती हूँ। तो पीवी इक्वल टू क्या लिखोगे? मतलब एनआरटी अभी जो मैंने किया था। हम करिए, मतलब हम मतलब एक कर सेकेंड। लेंगे ये, मिल जाएगा ना सुन गूगल पे। हाँ हाँ, यू विल गेट हाँ, वॉट एवर यू फिर विल लगे। गेट, दैट विल बी द इक्वेशन, वही इक्वेशन होगा। चेंज सिर्फ यहाँ पे आएगा, डीपी बाई रो में ही चेंज आएगा। दिस टू विल रिमेन कांस्टेंट, बी स्क्वायर बाई 2 प्लस जी। ठीक है, तो हम कब का क्वेश्चन है ये?
ये है तुम्हारा 2021 का है या 20 का है कुछ। हाँ 22 का है सर। मैम एक बार और ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब बहुत टफ था वो, 2023 में आया था शायद। अच्छा अच्छा। मतलब बहुत ही हाँ टफ था उसमें। तो फिर उस यहाँ पे क्वेश्चन को तुम्हें ड्रॉप अगर कर अगर दिया तुम्हें था। अगर तुम्हें यूलर्स नहीं भी पता था ना, अगर यहाँ पे तुमने लगाया बर्नौलिस एंड यू आर गेटिंग 590, चेक करोगे ना 590 आएगा, तो तुम्हें वैसे ही ऑप्शन को रॉन्ग कर देना था, क्योंकि 590 आता इनकॉम्प्रेसिबल के लिए, ये तो कॉम्प्रेसिबल है, अगर आ रहा है मतलब गलत दिया है। So that way also you could have proceeded. चलो, there is one more question I want to discuss this at least. Let's discuss this. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, I would say. अगर तुम्हें बेसिक पता है, you can easily crack it. This was not difficult. देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना तुम बेसिक फॉर्मूला पे चले जाओ। बेसिक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, अगर तुम्हारा लिक्विड ऐसे कंटेनर में है, कंटेनर का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ऐसे फ्लूइड होता है ना, और हम बात करते हैं प्रेशर डिफरेंस की। प्रेशर डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं? लेट्स से हियर प्रेशर इज P1 एंड लेट्स से हियर प्रेशर इज P2। तो क्लियरली तुम लोग बोलोगे कि अगर मैम ये हाइट h है, तो आप लिख दो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। सो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू रो जी एच। बट इसको ना एनालाइज करने की जरूरत है। एनालाइज ये करना है कि तुमने एच क्या है, हाइट अलोंग द लिक्विड, सो दिस इज हाइट अलोंग द लिक्विड, एंड इस हाइट के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, आई मीन नॉट ऑफ द कंटेनर, ओवरऑल फ्लूइड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ विथ एक्सेलरेशन g, एंड वही एक्सेलरेशन यहाँ पे आया। दिस h इज व्हाट, हाइट, एंड along this height itself this is acceleration taken. Similarly तुमने एक पढ़ा होगा, ऐसा अगर कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड है, अगर तुमने इसको एक्सेलरेट कर दिया आगे की तरफ, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दिया, तो क्या हो जाता है, तुम्हारा लिक्विड का लेयर चेंज हो जाता है, होता है ना। सो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालने का तरीका होता है। अगर तुम बात कर लो, सपोज कर लो मैं एक पॉइंट यहाँ पे बात कर रही हूँ और दूसरे पॉइंट यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है। अगेन, अगर फर्स्ट कंटेनर में तुम यहाँ और यहाँ की बात करो, तो इन दोनों पे प्रेशर सेम है। क्यों? क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, राइट। सो प्रेशर सेम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो लेट्स से मैंने फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल शेप का वाटर ले लिया। सो अगर एक्सेलरेशन इस सेंस में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है ना, यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा क्या है, ज्यादा है, या फिर स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट ले लो। सो लेट्स से यहाँ पे प्रेशर P1 है, तो यहाँ पे लिखोगे फोर्स प्रेशर की वजह से P1 A है,
स्यूडो फोर्स हमेशा इधर लगाते हैं, तो इधर ma लगा दो। m इज द मास ऑफ दिस सिलिंड्रिकल वॉल्यूम ऑफ वाटर, एंड ऑन दिस साइड प्रेशर क्या लगाओगे आप? प्रेशर लगाओगे ऐसे P2 इनटू एरिया, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आप अगर आप इस फ्रेम से काम कर रहे हो, जो कि मैं कर रही हूँ क्योंकि आई हैव एडेड स्यूडो फोर्स हियर, यू विल बैलेंस फोर्सेस। so force acting towards the right is what? P1A1, and towards the left is what? P2A, a सेम है, P2A प्लस Ma। ठीक है, Ma को क्या लिख सकते हो? लेट्स से दिस कॉलम ऑफ लिक्विड इज L। ठीक है, सो यहां से आप लिखोगे P1A इक्वल टू P2A प्लस, इफ दिस लेंथ इज L, वॉल्यूम विल बी AL, एंड डेंसिटी रो ले लो लिक्विड का, रो इनटू A। ठीक है, अब आप एक काम करो, ए कट कर दो। अब देखो क्या बच रहा है। अ, कुछ गलत किया क्या मैंने? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ओके, प्रेशर हियर इज ग्रेटर, नो नो मिस्टेक। सो P1 माइनस P2 क्या दिख रहा है बताओ? इट इज रो LA। अब आप इन इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, क्या कंपैरिजन में दिख रहा है? हियर लेंथ वी हैव टेकन अलोंग दिस लाइन, एंड अलोंग दिस लाइन एक्सेलरेशन इज व्हाट? A, and that is why pressure difference of 2 points separated by distance L is given as rho LA, rho LA। ठीक है, similarly in any sort of fluid, if you know separation between 2 points, let's say separation between 2 point is L, then you have to check what is acceleration in this direction, and then pressure difference P1 P2 along, I mean प्रेशर डिफरेंस विल बी देयर। सो P1 माइनस P2 को क्या लिखने वाले हो आप? रो L, वट एवर एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, दैट इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। सो अगर आप क्वेश्चन में जाओ, देर इज अ सिलिंड्रिकल कंटेनर हियर, एंड व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज kept on a wedge। wedge is आई मीन वेज का एक्सेलरेशन क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देर इज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब विथ इट्स बेस एज सोन इन द फिगर, दिस इज फिल्ड विथ वाटर, इट इज मूविंग डाउन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन A along a, okay, so it is moving down with constant acceleration A। ठीक है, along a fixed inclined plane with angle theta, P1 and P2 are pressure at point 1 and 2 respectively, located at the base of the tube, let beta P1 minus P2 by rho GT is this। they are given options। ठीक है, let's focus on point 1 and 2। so point 1 और 2 कुछ ऐसा है। ठीक है, P1 माइनस P2 हमें करना है। so let's talk about it। कौन से लाइन लेने वाले हो? 1 और 2 का सेपरेशन हमें पता है क्या? नहीं पता है, एक काम करते हैं, पता कर लेते हैं। सो दिस इज D, एंड दिस एंगल इज 45, दिस एंगल क्या होगा? ये भी 45 होगा, एंड उससे अगर आप निकालते हो तो ये D√2 आ जाएगा। सो मेरे पास दो पॉइंट है, पॉइंट 2 एंड 1। ठीक है, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 1, सेपरेशन भी नो, √2D। नाउ एक्सेलरेशन की बात कर लो। आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? इस फ्रेम में आप बैठ जाओ। अगर आप इस फ्रेम में बैठ गए हो, इनसाइड सिलिंड्रिकल कंटेनर कंटेनिंग वाटर, ये डाउन जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, सो स्यूडो फोर्स लगेगा, एंड स्यूडो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट इट, दिस इज ए। ठीक है, एंड इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि दिस इज नॉट अ हॉरिजेंटल लाइन अनलाइक दिस कंटेनर। यहाँ पे तो ग्रेविटी आ नहीं रहा, क्योंकि ग्रेविटी डाउन होता है ना, इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कुछ भी नहीं होगा, दैट इज व्हाई आई डिडंट टेक दैट। बट हियर इफ यू सी, जी किधर लग रहा है? जी लगता है डाउन में, एंड इट विल हैव कंपोनेंट अलोंग द लाइन। ठीक है, एंड इट्स कंपोनेंट विल बी हाउ मच? G√2। सो इस डायरेक्शन में मैंने लिया A, और इस डायरेक्शन में मैंने लिया G√2। सो व्हाट आई विल से? आई विल से इट हैज एक्सेलरेशन नेट इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि आई मीन या फिर कुछ भी ले लो, डजेंट मैटर, ए माइनस करो G√2, या फिर जो भी करो, वट एवर यू डू, वट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ। सो A माइनस G/√2, मैं कुछ भी ऐसा कर रही हूँ, दिस इज द एक्सेलरेशन, एंड इन टू रो LA मैंने बोला था, डेंसिटी को रो ले लो, लेंथ क्या है इसका? √2D है, एंड दिस विल बी इक्वल टू द प्रेशर डिफरेंस। सो लेट्स से दिस इज P1 माइनस P2। ठीक है,
अब आप वैल्यूज को चेक कर लो। अब इफ बीटा इज जीरो, बीटा जीरो होने का मतलब क्या है? बीटा जीरो होने का मतलब ये है कि P1 माइनस P2 जीरो है, यानी कि दोनों का प्रेशर सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला टर्म जीरो हो जाए, यानी कि A इज इक्वल टू G/√2, तभी पॉसिबल है ना। सो इफ बीटा इज जीरो देन A इज इक्वल टू G/√2। इफ बीटा इज ग्रेटर देन जीरो, बीटा ग्रेटर देन जीरो व्हेन A इज इक्वल टू G/√2, नो, A जब G/√2 है तो बीटा तुम्हारा जीरो है। सो व्हेन A इज इक्वल टू G/2 देन बीटा इज दिस। आप निकाल लो फिर, A का वैल्यू G/2 रख दो। सो इफ यू पुट G/2 माइनस G/√2, सो यहाँ से इसको √2 कर दो, √2 कर दो। सो दिस विल बिकम 1 माइनस √2/2 G, दिस विल बिकम दिस, राइट? सो क्या आ रहा है बताओ? यू कैन पुट इट एंड यू कैन चेक, मुझे करेक्ट लग रहा है ये बी ऑप्शन करेक्ट जा रहा है। वैल्यू सेम सेम आएगा। ओनली यू हैव टू बी केयरफुल विथ कि P1 बड़ा होगा कि P2। उसके लिए देखो मैं थोड़ा थक गई हूँ। आई विल से कि यहाँ से चेक कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे देख लो, सिंपल है, अगर भूल जाते हो ना तो याद रखना, ये P1 है, ये P2 है। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जब आप जाओगे ना, नेट एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाओगे, तो तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। सो P2 इज ग्रेटर देन P1 हियर। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप बात करो, तो इफ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, प्रेशर विल इंक्रीज। सो यहाँ पे देखो हमें मिला था ना P1 ग्रेटर मिला था P2 से। P1 क्या था, P2 प्लस A L ρ A। सो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो पॉइंट उस डायरेक्शन की तरफ ज्यादा है, उस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा। सो यहाँ पे अगर मैंने लिया है, ए को ज्यादा लिया है, अगर मैंने ए को ज्यादा लिया, इसका मतलब टू का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, मैंने P2 माइनस P1 मुझे करना था। ठीक है, ऐसा। तो इसलिए साइन में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू चेक। सो यू कैन इजिली डू सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, किसी को डाउट है बताओ? ये मैं ऐसे कर रहा था, ग्राउंड के फ्रेंड ने मतलब जी का अलग से लिख लिया और ए का अलग से लिखा, फिर उन दोनों को कंबाइन कर दिया। ऐसा आंसर गलत आ रहा है। हाँ मैम। हाँ, तो तुम्हें तुम्हें उस केस में तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि तुमने ए लिया ना, ए लिया किस किस, ए लिया इस डायरेक्शन में, राइट? है ना? हम्म, ए तो इधर ही है ना, एक सेकेंड, मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ। ए तुमने कुछ ऐसे लिया, ए इस डायरेक्शन में था, और जी ऐसा था ना, ऐसा किया ना तुमने, और कुछ। हाँ। और इसके बीच का एंगल क्या था? 45। 45। अगर तुम इसका रिजल्टेंट लेते हो ना, तो वो रिजल्टेंट इसके अलोंग नहीं होगा, वो रिजल्टेंट कहीं और है। और जो तुम्हारा 2 और 1 पॉइंट है ना, दैट इज अलोंग द प्लेन, मार्केट, दिस इज अलोंग द प्लेन। सो अगर तुम जी इफेक्टिव निकालने जा रहे हो ना, तो एल इफेक्टिव भी निकालना पड़ेगा, तो आई एम टेलिंग यू। जी/√3। जी का। यस। मैम हाँ, एल इफेक्टिव ही लिखा है मैंने। एल इफेक्टिव मतलब कितना जी है? के लिए एल डी ही लिखा है मैंने। L, हाँ, तो तुम्हें सबसे पहले तो देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा कि तुम्हें तो ए पता नहीं है, और जब ए नहीं पता तो यू डोंट नो कि इन दोनों का रिजल्टेंट के अलोंग जा रहा है। और अगर तुम्हें ये पता कि कौन से लाइन, तो 1 और 2 के बीच का कंपोनेंट इसके अलोंग तुम कैसे ले पाओगे? इसे हो जाएगा ना। और मैं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसे गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? मैं क्या करा ना कि ए के लिए अलग कर से लिख सकते हो। दिया प्रेशर डिफरेंस, और जे के लिए अलग से लिख दिया, फिर उन दोनों को एक प्लस कर दिया। सॉरी। मैम कैसे बताऊँ? तुम, आई विल सी। मैम मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे? एक्सप्रेशन, हाँ मैंने लिखा है actually। देखो, ठीक है, देखो अगर तुम जी इफेक्टिव निकाल रहे हो ना, जैसे कोई भी केस में, इस केस में भी अगर आप जी इफेक्टिव, जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस में जी इफेक्टिव जी ही है, यहाँ पे भी अगर तुम जी इफेक्टिव निकालने जाओगे ना इस कंटेनर वाले केस में,
लेट मी शो यू हियर, इस सिंपल एग्जांपल से मैं बताती हूँ। यहाँ पे अगर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, लिक्विड कुछ ऐसे जाता है ना। अगर किसी भी पॉइंट, इस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है प्रेशर का वैल्यू, लेट से, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे जी इफेक्टिव निकाल दोगे। अगर आप जी इफेक्टिव निकाल रहे हो ना, तो लेट से यहाँ पे गया, जी इधर था, ए इधर था, जी इफेक्टिव कहीं इधर जाएगा। ठीक है। सो तुम क्या करोगे, फिर यहां से ऐसे एक लाइन, ऐसे डॉटेड लाइन बनाओगे, और सरफेस से यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाओगे, और देखोगे कि ये हाइट कितना है। एंड देन यू विल राइट कि यहाँ पे अगर प्रेशर पी नॉट है, देन यू विल राइट कि प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी पी नॉट प्लस रो जी इफेक्टिव एच। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर तुम जी इफेक्टिव निकाल रहे हो ना, और दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस निकालना है, देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि डिस्टेंस कैसे ले रहे हो। वो डिस्टेंस लेना कंफ्यूजिंग होगा इस केस में। समझ रहे हो? इसलिए मैं हॉरिजेंटल कंटेनर के केस में भी मैं प्रेशर जी इफेक्टिव से नहीं निकालती। अगर मुझे ए पता है, और किसी भी एक पॉइंट का प्रेशर मुझे पता है, तो दूसरे पॉइंट का प्रेशर मैं सिंपल रो एल ए से करके निकाल लूंगी। ठीक है। या फिर सिंपली जी इफेक्ट जी से भी निकाल सकते हैं। जी से निकालने के लिए मुझे सरफेस से इसका ये वाला हाइट बस पता होना चाहिए। बट अगर जी इफेक्टिव से निकाल रहे हो, तो तुम्हें ये हाइट पता होना चाहिए, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वॉट, आई मीन जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन जाएगा। सो कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा, आई वुड से। यहाँ पे तो क्लियरली है, दो पॉइंट के बीच का उस डिस्टेंस हमें पता है, वन और टू के बीच का, उसके अलोंग एक्सेलरेशन पता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट p1 माइनस p2 बाय द फॉर्मूला। आर यू पीपल गेटिंग कंफ्यूज? देन लेट मी नो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। यस, इफ इट इज डन देन आई एम डन। एंड देखो, अगर तुमने टॉपिक को ज्यादा नहीं करा है, तो आई विल सजेस्ट डोंट डू मच, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्रैक होंगे नहीं। इफ यू हैव background of fluid mechanics, if you have done it a lot already, then definitely you apply your brain, you get it done. But if you are quite new to this topics, I would say please don't mess with it, क्योंकि क्या होगा ना, फिर बहुत सारी चीजें मेसी मेसी होकर तुमने कुछ और पढ़ा, फिर लग रहा है कुछ और हो रहा है, दैट विल कंफ्यूज यू। सो अभी के लिए मैं ये कहूंगी कि देखो, अब तो आगे कोई ऐसा क्लास नहीं है, देर इज ओनली वन टेस्ट लेफ्ट, सो आई आई हैव जस्ट वन सजेशन टू गिव। सभी लोग, जो भी टॉपिक तुम लोग पढ़े हो, जो भी टॉपिक में तुम लोग अच्छा फील कर रहे हो, सबसे पहले फॉर्मूला उसका, जितने भी सिंपल फॉर्मूलेज हैं, एडवांस फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज हैं जो तुमने सीखा है, सबको मार्क कर लो, सबको याद रखो। एंड जो टॉपिक ज्यादा अच्छा ग्रास्प है, जिस किसी भी टॉपिक पे, उसके क्वेश्चंस को करो, रिपीट करते रहो, और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते रहो। अब न्यू टॉपिक पर टच करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है। सो डू दैट वे, एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन जहां से तुम्हारा हो रहा है। एंड मॉडर्न फिजिक्स जरूर करना, आई वुड से, वहां से क्वेश्चन काफी इजी आते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स इजी रहेगा। और अगर मैं फिजिक्स में और भी ट्वेल्थ के टॉपिक की बात करूं, तो इलेक्ट्रोस्टैट तो वैसे इजी जाता है, बट अगेन यू शुड हैव प्रैक्टिस इन दैट थिंग। एंड 11th क्लास में, इफ यू टॉक अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम से जो भी क्वेश्चन आता है, प्लीज ट्राई डूइंग इट, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट से लगाने, वैसे क्वेश्चन ग्रेविटी का भी हो सकता है। वैसे क्वेश्चन में भी हमने देखा सरफेस टेंशन से रिलेटेड सिंपल फॉर्मूलाज बेस्ड एंड एनर्जी कंजर्वेशन थिंग वाले क्वेश्चंस थे। सो ट्राई टू बी मोर वाइज, ट्राई टू डू क्वेश्चंस जिससे तुम ज्यादा फेमिलियर हो, rather than wasting your time with something you're not familiar with. That will kill your time, and at the same time that will demotivate you. So I don't want कि अब ये तुम लोगों के साथ हो। अभी टाइम है तुम्हारे पास 5 दिन का, समथिंग। So what you have to do, simply जो पढ़ा है, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, keep on going through that thing, and keep yourself more healthy and all. Give one test that is pending, एंड टेस्ट में भी सेम टेक्निक अपनाना। जो क्वेश्चंस तुम्हें इजीली हो सकता है, क्रैक दैट फर्स्ट। कोई भी ऐसे क्वेश्चंस के पीछे मत पड़ जाना जिसको तुम्हें करने का दिल कर रहा हो।
ठीक है, वही क्वेश्चन के पीछे पढ़ना है जिसको देखकर लगता है कि नहीं ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट विल बी द गुड अप्रोच। ठीक है, सो तुम लोग सही से पेपर दो, दैट्स ऑल आई कैन से। एनीवन एनी डाउट देन लेट मी नो इफ यू हैव। नो मैम। नो, ठीक है, चलो एवरीवन देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय एवरीबॉडी एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग Thank एग्जाम। थैंक थैंक यू, यू बाय मैम। बाय, थैंक Yeah, ma'am. Good day. गुड डे टू यू ऑल्सो, बाय एवरीबॉडी।